نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے ہم آج شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پہ دیکھیے ہمارے پاس ہے یہ مد لازم حرفی ہے نا۔ تو مد لازم حرفی مخفف کیا ہوتا ہے؟ یہ لازم کا مطلب ضروری ہے نا، سب کو پتا ہوا 6 حرکتوں تک مد کر کے پڑھنا چاہیے۔ کتنی حرکت؟ 6 حرکت ہے نا، 6 حرکت تک مد کر کے پڑھنا چاہیے۔ جس کسی حروف کے نام میں مد اصلی کے بعد حرف ساکن آئے، جیسے کیا کاف، نون، میم، تو کیا ہوگا؟ مد لازم حرفی مخفف ہو جاتا ہے نا۔ اس کے بعد مد اصلی ہے نو ہے نا، مد اصلی ہے ہی، آپ کو پتا ہے نا، واو سے پہلے پیش اور ہا سے پہلے یا سے پہلے زیر ہے نا۔ تو یہ چیزیں سب دیکھیے، یہ مد اصلی کے حروف بھی ہونا چاہیے، ان کے بعد فا، نون، میم، حرف ساکن ہے نا، پھر ساکن بھی ہونا چاہیے۔ پڑھتے ہوئے کھینچ کر مد کرنا لازم ہے۔ مد ایک حروف کے نام میں ہے تو پڑھنے میں خفیف، ہلکا ہو یا آسان ہے، یعنی صرف ایک حروف میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ خفیف، ہلکا اور آسان ہوگا، اس لیے اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں۔ یہ حرف قرآن مجید کی سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کو حرف مقطعات بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آیا کہ مد لازم کیا ہوتا ہے؟ پہلے دیکھنے کے لیے ہمیں جب مد لازم دیکھنا ہوگا تو مد اصلی کے بھی دیکھنے ہوگا۔ اس کو کتنے، سب سے پہلے تو 6 کاؤنٹ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، 6 حرکتوں تک مد کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ جب کسی حروف کے نام میں مد اصلی کے بعد، ٹھیک ہے، مد اصلی کے بعد حرف ساکن ہے، مد اصلی کے بعد ساکن، کاف، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا آ رہا؟ آپ کو آیا سمجھ میں؟ دیکھیے فا پہ کیا ہے؟ ساکن ہے نا، ساکن ہے۔ اصلی کیا ہے؟ قاف جو ہے الف سے جو ہے الف زبر سے پہلے کیا ہے؟ الف کے سے پہلے زبر ہے، تو یہ مد اصلی کا حروف ہو گیا۔ تو اور فا پہ ساکن ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ لمبا کھینچیں گے، کتنا لمبا کھینچیں گے؟ کیف، ہے نا، 6 کاؤنٹ۔ اب دیکھیے نون، نون کیا ہے؟ اور نون جو ہے واو کیا ہے؟ واو سے پہلے آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے، تو یہ مد اصلی کا ہے۔ نون کے اوپر ساکن ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ نون، میم، تو یہ لازم حرفی مخفف ہے۔ مخفف کا میننگ کیا ہوتی ہے؟ ہلکا ہوتا ہے نا۔ اور جیسے اصل یہ ہوگا سمجھ میں، نون کے بعد فا ساکن، نون ساکن، میم ساکن، حرف ساکن ہے نا، یہ سب ساکن ہے۔ پڑھتے ہوئے کھینچ کر مد کرنا لازم ہے، یعنی ہم جب پڑھتے ہیں نا، شروع میں دیکھیے قرآن کے شروع میں آتا ہے سب پہ مد ہوتا ہے نا۔ یہ آپ کو دیکھیے، اگر ہم اس کو کیا کریں گے؟ کھول کے مطلب کہ اس کو توڑ کے لکھیں گے نا، اسپیل کریں گے جیسے اسپیلنگ کرتے ہیں، تو نون کی آواز میں آپ دیکھیے کیسے آئے گی نون کی آواز۔ تو اس میں نون پڑھتے وقت آپ کو کیا آئے گا؟ مد اصلی کے حروف آپ کو لکھنا پڑے گا اور نون ساکن کرنا پڑے گا۔ تو اس کو کھول کے مطلب کہ اس کو اسپیل کریں گے تو نون پڑھنے میں تو صرف ایک ہی نون لکھا ہوا ہے نا، یہ اس کو مقطعات بھی کہتے ہیں۔ لیکن ہم جب پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ جو مد آتا ہے حرف مقطعات ہوتا ہے، یہ حرفی، یہ کیا ہوتا ہے؟ حرفی ہوتا ہے۔ حرف یہ کیا ہوتا ہے؟ مخفف ہوتا ہے۔ مخفف کے معنی ہوتا ہے ہلکا، ہے نا، ہلکا ہوتا ہے، لائٹ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں شروع کے جتنا آپ قرآن جیسے شروع کریں گے نا پڑھنا، تو یہ چیز آتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہم کو؟ کہ 6 کاؤنٹ، کیسے انگلی جیسے کھولیں گے نا، 1 سیکنڈ پہ ایک انگلی کھولتے ہیں نا، تو اسی طرح ہوگا۔ نون، قاف، صاد، حامیم، یاسین، توسین، ہے نا، پھر عین، سین، قاف، ہے نا،
अलिफ लाम रो कैफ हा या आइन सोद, है ना। ये सब चीजें जो है याद रखिए कि हुरूफ आइन में 4 हरकतों से भी पढ़ना जायज है ना। जो आइन है वो 4 हरकत आप पढ़ सकते हैं, है ना। और इसे मद लाजिम लीन कहते हैं। जो आयन आता है, जो शुरू में आता है, उसको 4 हरकत पढ़ेंगे और इसको मद लाजिम लीन भी कहते हैं। ठीक है, आइन लीन कैसे कहते हैं आप समझ लीजिए। जब हम इसको स्पेल करेंगे तो आयन लिखते वक्त या से पहले जबर आता है, इसलिए यह मद लीन का वो हुरूफ आ गया, इसलिए इसको मद लीन वाले हुरूफ को 4 हरकत कर सकते हैं। तो आइन है ना। फिर देखिए सीन है ना, सीन में तो आपको क्या करना है, ये मद लीन नहीं है। सीन को नीचे आप जेर देके पढ़ेंगे, जब जबर के साथ होता तो वो लीन होता है, ये मद असली के हैं। और ये भी मद असली के हैं, है ना। अलिफ 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 से पढ़ेंगे, लेकिन लाम है ना, ये मद लाजिम हो गया। रो मद लाजिम नहीं है, ठीक है। मद लाजिम सिर्फ इसके ऊपर 2 हरकत करके रुक जाएंगे, है ना। ठीक है। कैफ ये मद लाजिम है, क्योंकि कैफ पे आपको क्या हो रहा है, सुकून हो रहा है ना। आपको सुकून होगा, जहाँ पे जज्म आएगा वही मद लाजिम हुर्फी होगा। अगर आपको रॉ के ऊपर आपको देखिए जज्म नहीं आया, सुकून नहीं आया, तो वो मद लाजिम नहीं होगा, है ना, याद रखिएगा। हाँ मद लाजिम नहीं होगा इसलिए कि सुकून नहीं आया, या मद लाजिम नहीं है, सुकून नहीं आया। आइन मद लाजिम हो गया, और ये क्या हो गया, आइन हम 4 हरकत पढ़ सकते हैं, मद लीन है। तो ये क्या हो गया, आपको मद लाजिम हुर्फी हो गया, क्योंकि दा के ऊपर जब हम इसको स्पेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर सुकून आ रहा है, याद रखिएगा। चले फिर हम आते हैं मद लाजिम हुर्फी मुसक्कल। अभी तो हमने हुर्फी मुखफ़्फ़फ़ पढ़ा, अब हमें पढ़ना है मुसक्कल। मुसक्कल क्या चीज होता है, ये देखिए आप। इसमें जब 2 हुरूफ के नामों को मिलाकर पढ़ा जाए और उसमें मद असली के बाद इदगाम, है ना, याद रखिएगा। इदगाम नाकिस मा अल गुन्ना, या इदगाम मुतमासिलैन। मुतमासिलैन यानी ये अभी हमको पढ़ाए नहीं है, लेकिन समझ लीजिए 2 चीजें होती है। मुतमासिलैन में क्या होता है कि एक सुकून वाला होता है और दूसरा क्या होता है, शद्दा होता है। उसको क्या कहते हैं, मुतमासिलैन कहते हैं ना। ये इंशाल्लाह हम आपको बाद में पढ़ाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये मद लाजिम हरफी मुसक्कल कैसे है, देखिए सीन के बाद मीम आ रहा है, तो मीम के ऊपर शद्दा है ना। तो ये हो जाएगा सीन मीम। तो सीन, और इसको क्या पढ़ेंगे, सीन मीम को पढ़ते वक्त क्या करेंगे, हमें 6 काउंट करना पड़ेगा। लाम मीम, ये भी 6 काउंट पढ़ेंगे। ये मुसक्कल है, क्यों कि ये हैवी है, इस पर शद्दा आ रहा, तो मद लाजिम हरफी मुसक्कल हो जाता है। ये मद करना लाजिम है 2 हुर्फों के दरमियान इदगाम और तशदीद की वजह से पढ़ने में सकील यानी भारी है, इसलिए इसको मद लाजिम हरफी मुसक्कल कहा जाता है ना। हरफी मुसक्कल कहा जाता है। 6 हरकतों तक तवील करके पढ़ना चाहिए। इनको हुरूफ मुक़त्तात भी कहते हैं। अब आ जाइए कि अलिफ है, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम, आपको पता है लाम क्या हो गया, ये मुसक्कल क्यों हो रहा है, उसके बाद मीम आ रहा है, मीम पे शद्दा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये मुसक्कल हो गया, यानी हैवी पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम, ये भारी पढ़ेंगे क्योंकि शद्दा है, इसका नाम हो जाएगा मद लाजिम हरफी मुसक्कल। तो क्या है, तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 2 काउंट है। सीन क्या है,
सीन पे आपको क्या है, ये कौन से आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं मुतमासिलैन। मुतमासिलैन मतलब कि पहले तो या इसके ऊपर सुकून आ रहा है सीन के ऊपर, उसके बाद आ रहा मीम, तो ये भी क्या हो जाएगा, तौसीन मीम। या इसको इस तरह से पढ़ेंगे, तौसीन मीम। अब क्या करेंगे, हम सीन को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, कि जब हमें सुकून के जो वो आते हैं, लेटर आते हैं, तो अगर उसके आगे वाले लेटर पे शद्दा है, तो जो सुकून वाला लेटर है ना, उसको छोड़ के हमें शद्दा वाले लेटर पे मिलाना होगा। तो ये क्या हो गया, तो सीन मीम। सीन नहीं पढ़ेंगे, अब सीन को मीम में मिलाएंगे, है ना, तो सीन मीम, नून को छोड़ देंगे। ये भी क्या हो गया, मुसक्कल हो गया, मद लाजिम मुसक्कल। अलिफ लाम मीम रो। अब देखिए, अब हम अलिफ लाम, लाम में क्या हो रहा है, देखिए फिर सुकून आ रहा है, तो लाम जो सुकून आ रहा है, तो वो उसको छोड़ के जो दूसरा वाला मीम पे जो सुकून आ रहा है, मीम के उसमें उसमें हम उसको मिलाएंगे। इसको, ये भी सकील हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो ये भी मद लाजिम मुसक्कल हो जाएगा। रॉ सिंपल रॉ पढ़ेंगे, तो अलिफ लाम मीम मुसक्कल। तो ये जो आपका रा है ना, वो मुसक्कल नहीं होगा, वो क्या होगा, सिर्फ आपको लाम मीम मुसक्कल होगा, ठीक है, ये मद लाजिम मुसक्कल होगा, ठीक है। अलिफ लाम मीम सॉद, ये भी क्या हो गया आपको, ये मद लाजिम मुसक्कल, इसलिए ये मीम पे अलिफ लाम, अलिफ, अलिफ से सिंपल पढ़ेंगे, लाम, लाम के मीम को छोड़ेंगे, दूसरे मीम में मिलाएंगे, स्वाद पे सुकून है, इसलिए ये मुसक्कल हो गया, ठीक है। अब आप आ जाते एक, अब में मद लाजिम कलमी, है ना, मद लाजिम कलमी क्या होता है। अब ये अभी हमने हुर्फी में पढ़ा था, हुर्फ के मतलब सिर्फ एक ही होता है, और कलमी क्या होता है, कलमा क्या होता है, दो हुरूफ को मिलाकर, जब हुरूफ बनते हैं, दो दो हुरूफ को मिलाकर कलमा बनता है। कलमा सिर्फ कलमा नहीं होता है, दो हुरूफ को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है, उसको कलमा कहते हैं। तो मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़, मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़, जब किसी कलमा में मद असली के बाद हुरूफ साकिन हो, है ना, हुरूफ साकिन, देखिए अलिफ लाम, तो 6 काउंट हरकतों तक मद लाजिम है। ये मद कल ये एक कलमा में है, मद करना लाजिम है, पढ़ने में आसान और खफीफ है, यानी पढ़ने में आसान भी है और खफीफ माने हल्का है, इसलिए इसको मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़ कहते हैं। ये मद इमाम हफ्सा रहमतुल्लाह अलैह की क़राअत के मुताबिक सूरह यूनुस में 2 जगह आई है, वो किसी का नाम लिया है, खैर इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ सूरह यूनुस में 2 जगह पे आया है। ये पूरे कुरान में कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा, मतलब कि मुखफ़्फ़फ़ मद लाजिम मुखफ़्फ़फ़ कहीं नहीं, कलमी मद लाजिम मुखफ़्फ़फ़ कलमी के पूरे कुरान में सिर्फ 2 जगह पे आया है, सूरह यूनुस में आया है, बाकी कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अलिफ लाम, है ना, ये क्या है, को मत को खींच के अलिफ लाम को मत के बगैर 2 अलग-अलग हमजों से भी पढ़ सकते हैं, जैसे अल आन, है ना। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे जो है अलिफ लाम को छोड़िए, दूसरे पर आ जाइए, अल आन। अब क्या हुआ कि ये हरफी मुखफ़्फ़फ़ है, कलमी है, दो दो कलमे में है ना, दो कलमे में है, और हल्का पढ़ा जा रहा है। क्यों हल्का पढ़ा जा रहा है, कि लाम के ऊपर आप देखिए क्या है, सुकून है, यानी जज़म है, तो और उससे पहले अलिफ के ऊपर क्या है, आपको मद है, तो इसको जो है हम इस सुकून की वजह से 6 काउंट पढ़ेंगे, लेकिन लाइट मुखफ़्फ़फ़ पढ़ेंगे। ये हरफी कलमी है, ये कि 2 कलमे को मिलाकर बनाया गया है, एक अलिफ कलमा है, फिर लाम है ना, तो इन दोनों को मिलकर ये बना हुआ है। तो इसको पढ़ने का तरीका है, आल आन, है ना, इस तरह से 6 काउंट करेंगे, ठीक है।
वक़द असैता क़ब्लु, वो आगे का है, उसको छोड़िए, इसमें कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं मद लाज़िम कलमी मुसक्कल पे। जब किसी कलमे में मद असली के बाद तशदीद वाला हुरूफ हो तो मद लाज़िम कलमी मुख़फ़फ़ मुसक्कल हो जाता है। तशदीद वाला यहाँ पे, और दो कलमे में दो किसमें हरफ को मिलाकर दो कलमा होता है, कलमा बनता है, तो कलमे में होता है, दो कलमे में, ठीक है? याद रखिएगा, दो कलमे में होगा। जैसे हाक़्क़ा, है ना? हाम्मा, या तो दरअसल ये कलमे हाक़्क़ा, ये हाक़्क़हू है, तो इसको क्या कहते हैं, हाम्मा है। तो इसमें जो जो होता है जो तशदीद होता है, उसको दो चीज होता है ना, एक तो सुकून होता है, एक शद्दा, एक हरकत होती है, तो दोनों को जब मिला देते तो शद्दा बन जाता है ना। तो इदगाम मुतमासिलैन और तशदीद की वजह से पढ़ने में सकील यानी भारी है, तो मद करना लाजिम है, और ये मद एक कलमे में है, इसलिए इसको मद लाजिम कलमी मुसक्कल कहते हैं। 6 हरकतों तक दराज करके यानी खींच कर पढ़ना है, पढ़ा जाता है, ठीक है? जैसे हादल्लाह, है ना? अब क्या किया, दाल में हमने मिलाया, यहाँ पे शद्दा देखा, और इसके ऊपर आपको मद असली के ऊपर आपको मद दिखेगा। अल्हाक़्क़ा, صافات كافة الذكرين الله ضارين حافين غير مضار جاءت الصاخة ولا الضالين شر الدواب ضالة آمين حاجة والمشركات الظانين قال تحاجوني, यहाँ पे दो जगह पे आया, ठीक है? यहाँ पे कैसे दो जगह पे आया, अतहाजू, देखिए वाव पे भी आ रहा है आपको बड़ी मत, है ना? और उसके बाद शद्दा है, तो यहाँ पे अतहाजूनी, है ना? तो यहाँ पे दो जगह पे आया है। नोट, आज ज़करैन अल्लाह पे मत किए बगैर दो अलग अलग हमजों से भी पढ़ सकते हैं। आज ज़करैन अल्लाह, यानी अलग अलग भी करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? चले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबा रिकॉर्डिंग करें।